Hello students, now I am going to continue with the chapter Trigonometry part 1st of 11th Science. Exercise 2.1 question number 7. So the example is if cos theta is equals to 12 upon 13 and theta is less than pi by 2 and greater than 0, find the value of, the first example is sin square theta minus cos square theta upon 2 cos sin theta into cos theta, and the second example is 1 upon tan square theta. So in this example we have given that is the value of cos theta. So you know the trigonometric identity, that is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So using this identity we can find out the value of sin square theta or sin theta. So sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. Sin square theta is equals to 1 minus 12 upon 13 bracket square. So sin square theta is equals to 1 minus 144 upon 169, the square of this one. After taking the LCM, that is 169 minus 144, we get 25 upon 169. And so by taking the square root of both sides, we'll get sin theta is equals to 5 upon 30. तो यहाँ पे हमें sin theta की भी वैल्यू मिल गई है और एग्जाम्पल में हमारे cos theta की भी वैल्यू है. So we are going to put down this value in this example that we have to find out. So the example given is sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta into cos theta. So the value of sin square theta, sin theta की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली थी. sin square theta का वैल्यू थी 25 upon 169 minus cos square theta, that is cos theta is 12 upon 13, so cos square theta is 144 upon 169 upon 2 into sin theta, that is 5 into 5 upon 13 into cos theta is 12 upon 13. So in numerator we take the LCM, that is 169. So taking cross 169 minus 25 minus, the base is same, so यहाँ पे 25 minus 144 होगा, and यहाँ पे 2 into 5 into 12, so we get here 120, and 13 into 13, that is 169. So 169 get cancelled, and so the answer is minus 119 upon 120. नाउ हमें यहाँ पे tan स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बिफोर दैट वी गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा यूजिंग द फॉर्मूला, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट tan थीटा. तो sin थीटा की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे पुट की थी, दैट इज 5 अपॉन 13 अपॉन cos थीटा इज 12 अपॉन 13. So 13 get cancelled, so we'll get here 5 upon 12. And so this is the value of tan theta. So taking squares, we will get tan square theta is equals to 25 upon 144. But we asked that is 1 upon tan square theta. So just take the inverse of this one. So 1 upon 25 upon 144. So the answer is 144 upon 25. Now we see the question number 8. So using tables, evaluate the following. हमने 10th स्टैंडर्ड में भी ये टेबल्स पढ़े थे. उसमें जो हमें वैल्यू दी थी, दैट इज़ 0, 30, 45, 60, 90. इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है. सो फॉर कॉट, सो दो यू नो दैट इज़ tan थीटा इज tan 45 इज़ 1, सो द इनवर्स ऑफ tan दैट इज़ कॉट, इट इज़ ऑल्सो 1. एंड सेक स्क्वेयर 60. मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी आपको ये टेबल बताया था. जस्ट आई एम गोइंग टू शो इट अगेन. सो सेक 60 हमें देखना है, तो सेक एंड 60 दैट इज़ 2. तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें मिली, दैट इज़ 2. सो 2 स्क्वायर प्लस द साइन 30 इज़ हाफ. सो 4 एज इट इज़, द स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4 प्लस हाफ. सो दिस प्लस माइनस 4 गेट कैंसल एंड द आंसर इज़ हाफ. अगेन cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर पाई बाय 6, cos स्क्वायर पाई बाय 3 एंड cos स्क्वायर पाई बाय 2. तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ये हमें अगर रेडियन में दिया है तो भी हमें उसके डिग्रीज पता है. पाई मतलब 180, सो 180 अपॉन 6. तो हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी है, cos 30. नेक्स्ट पाई बाय 3 मतलब पाई मीन्स 180 अपॉन 3. सो यहाँ पे क्या है, cos 60, और यहाँ पे क्या है 90. तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे. cos 0 इज़ 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 60 is half, and cos 90 is 0. And after solving this 1, that is square of the root 3 is 3 upon 4, 1 by 4, and this 0 as it is.
आई एम गोइंग टू टेक ओनली द एलसीएम ऑफ दिस टू पार्ट, दैट इज़ 4 एंड 3 + 1 दैट इज़ 4. यहाँ पे मुझे 1 मिला, सो 1 + 1 दैट इज़ 2. तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमें टेबल का यूज़ करके ये सॉल्व करना आना चाहिए. सो अगर बाकी के एग्जांपल जो है वो आप खुद से करना है. क्वेश्चन नंबर 9, then find the other trigonometric functions if cos theta is equals to -3/2 and theta is less than 270 and greater than 180. So what is the meaning of this one? थीटा जो है वो 270 से कम है. 270 मतलब कहाँ पे 270 होता है? यहाँ पे. आपको ये पता है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है. डिग्रीज में लिखती हूँ. यहाँ पे 270 है और यहाँ पे अगेन 360 है. तो हमें क्या दिया है कि थीटा इज़ लेस दैन 270, मतलब ये 270 से कम है एंड 180 से ज़्यादा है. मतलब जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है हमें दिया है, दैट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट में. यहाँ पे मैंने टिक मार्क की है. सो इसका मतलब क्या है, द थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड यू नो दैट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब रेशियोज नेगेटिव होते हैं. ये फिगर ऑलमोस्ट आपको हर एक एग्जाम्पल में ड्रॉ करनी है. सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आप लिख सकते हैं, दैट इज़ 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, और डिग्रीज में लिखा तो भी चलेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी. तो अभी हमें ये पता चला कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में. वहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट रेशियो आता है तो ही वो पॉजिटिव है, अदर बाकी के सब जो रेशियोज हैं वो निगेटिव है. तो हमें वैल्यू कौन सी दी है, कॉस थीटा की दी है. तो अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू भी आपको निगेटिव ही दी है. तो कॉस हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस फाइंड आउट करना है, मतलब हमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कॉस थीटा दिया है तो उससे हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. So using this value, that is -3/5 bracket square, 9/25. After solving this we get that is 16/25 and the value of sin theta is 4/5. मतलब यहाँ पे हमें sin थीटा बाय कैलकुलेट करके हमें ये मिला है, लेकिन हमें ये पता है कि थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो अगर सॉल्व करके ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली है फिर भी हमें वो निगेटिव लिखनी है. सो बट थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. So we have to write down that is theta, sin theta is equals to -4/5. अगर sin theta हमें मिलता है तो cosec theta भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका इन्वर्स हम लेते हैं -5/4. cos की वैल्यू तो हमें एग्जांपल में ही दी है, दैट इज़ -3/5. तो cos theta इज -3/5. इसका इन्वर्स है sec, तो टेकिंग इन्वर्स -5/3. अभी हमें sin थीटा पता है, cos थीटा पता है, तो हम tan थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो putting the value, that is sin theta is equals to -4/5 and cos is -3/5. 5 get cancelled और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस. सो माई आंसर इज़ 4/3. सो अल्टीमेटली tan की जो वैल्यू है वो भी हमें पॉजिटिव मिल ही जाती है अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है. तो tan इज़ 4/3 एंड cot इज़ 3/4. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज था, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.1, वो ख़त्म होता है. ये जो एग्जांपल मैंने अभी सॉल्व किया है वो आप फिगर की हेल्प लेके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करना है, एक फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. मैं जस्ट आपको बताती हूँ कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर ऑल्सो. तो कोई भी नाम यहाँ पे हम दे सकते हैं, ABC, और थीटा यहाँ पे है. तो हमें एग्जांपल में कौन सी वैल्यू दी है, दैट इज़ कॉस थीटा की वैल्यू दी है. कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा. एंड आफ्टर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू, दैट इज अपोजिट, एंड वी कैन फाइंड आउट दिस वे. इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन दैट इज थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. सो ओनली tan एंड cot वैल्यूज आर पॉजिटिव, रिमेनिंग वैल्यूज को आपको निगेटिव साइन देना है. So this is the end of the exercise 2.1 and we start with the exercise 2.2. So the first example is similar that of the examples in the exercise 2.1. So we start with the exercise 2.2.
क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2 sin A is equals to 1 is equals to 2 root 2 sin B, and A is less than pi and greater than pi by 2, and also B is less than 2 pi and greater than 3 pi by 2, then find the value of tan A plus tan B upon cos A minus cos B. तो पहले हम क्या करेंगे, हमें जो कंडीशन दी है वो कंडीशन को हम देखेंगे, ये वाली। तो मैंने यहाँ पे लिखा है A इज़ लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन पाई बाय 2। तो पाई का मतलब क्या है 180 एंड ये है वो है 90, मतलब क्या है A जो है वो 180 से कम है एंड पाई बाय 2 से ज़्यादा है। तो फिगर में यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। हमने अभी बोला कि A इज़ लेस देन पाई, पाई से कम है मतलब वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और पाई बाय 2 से बड़ा है मतलब यहाँ पे। मीन्स हमारा जो थीटा है और ए है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे मैंने फिगर नहीं ड्रॉ की है, आप कर सकते हो। सो ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे दैट इज बी इज़ लेस दैन 2 पाई, मतलब वो 360 से कम है, और इट इज़ ग्रेटर दैन 3 पाई बाय 2 मतलब 270 से ज़्यादा है। देखो 270 से ज़्यादा और 360 से कम, 270 से ज़्यादा और 360 से कम, मतलब वो कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ बी लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पहले आपको फाइंड आउट करना है कि ए कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग रेशियोज आर निगेटिव। बी लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, वहाँ पे ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग रेशियोज आर निगेटिव। तो हमें ये दिया है दैट इज़ 2 sin A इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू रूट 2 cos B। मतलब हमने 9th में कहा तो पढ़ा था दैट इज़ A इज़ टू B इज़ टू C। ऐसा अगर आता है तो ये B जो है वो हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ 2 sin A इज इक्वल्स टू 1 एंड ऑल्सो रूट 2 cos B इज ऑल्सो 1। ये यहाँ पे देना है और ये यहाँ भी देना है। तो sin A की वैल्यू हमें मिली दैट इज़ 1/2 एंड cos B की 1/√2। तो हम यहाँ पे दोनों जगह पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा रहे हैं। साइन ए अगर मेरे पास है तो हम कॉस ए फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉस भी अगर है तो साइन भी फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। द वैल्यू ऑफ साइन इज हाफ, सो 1 माइनस हाफ स्क्वायर, सो 1 माइनस 1/4, सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, टेकिंग एलसीएम दैट इज 4 क्रॉस करके हमें मिला 3, and so the value of cos A is taking square root that is √3/2। अभी हमें पता है कि A कौन से क्वाड्रेंट में है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक का पॉजिटिव, बट हमें क्या मिला है, कॉस मिला है, तो ये क्या होगा, निगेटिव। तो हमें यहाँ पे लिखना है cos A इज इक्वल्स टू माइनस √3/2। माइनस हमने क्यों लिया उसका रीज़न मैंने ऊपर लिखा है। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर भी हमें साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बिकॉज हमारे पास कॉस की वैल्यू है। तो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। द वैल्यू ऑफ कॉस बी इज़ 1/√2, सो द स्क्वायर करके हमें मिला 1/2। सो द LCM इज 2, टेकिंग क्रॉस दैट इज 2 माइनस 1, सो विल गेट हियर हाफ, एंड द वैल्यू ऑफ साइन बी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड विल गेट 1/√2। तो यहाँ पे साइन बी की हमें वैल्यू मिली है, लेकिन B जो है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस एंड सेक का पॉजिटिव, साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमने साइन को निगेटिव साइन दिया है। क्यों दिया है उसका रीज़न यहाँ पे लिखा है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan A एंड tan B, बिकॉज द क्वेश्चन दैट वी हैव आस्क्ड इज इन देयर इज अ tan A tan B, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यूज। तो tan A जो है वो है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड हमें वैल्यू मिली साइन ए की जो वैल्यू है वो है हाफ, एंड कॉस ए की वैल्यू थी -√3/2, तो हमें मिला -1/√3, एंड tan बी साइन बी अपॉन कॉस बी -1/√2/1/√2, तो tan बी की वैल्यू मुझे मिली -1। तो tan ए प्लस tan बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी, तो यहाँ पे -1/√3 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा, सो -1/√3 -1, एंड यहाँ पे
जो वैल्यू हमने पुट की है दैट इज़ -√3/2 -1/√2। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम इज़ √3, तो यहाँ पे मैंने √3 लिया है, टेकिंग क्रॉस सो विल गेट माइनस एंड -√3। नीचे भी एलसीएम होगा 2√2 टेकिंग क्रॉस दैट इज √3 इंटू √2, सो वी गेट हियर √6, और वी कैन पुट इट एज इट इज़ √3 इंटू √2 ऐसे भी लिखा तो भी चल सकता है, -2 ये क्रॉस करके 2। तो अभी ये जो है -1 -√3/√3 ये इन्वर्स करके हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2√2 न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड -√6 -2 इज एज इट इज। नाउ यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला है, सो इन ब्रैकेट विल गेट 1 + √3/√3 2√2 एज इट इज़। यहाँ पे जो मैंने ये √6 लिखा उसको मैंने फिर से स्प्लिट अप कर दिया √3 इंटू √2 करके, एंड -2 को हमने लिखा है √2 इंटू √2 सो दैट वी कैन टेक इट कॉमन। सो यहाँ से -1 + √3 ये दोनों टर्म्स एज इट इज़, ये जो है इसमें से हम √2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे -√2 कॉमन निकाला है, सो इन ब्रैकेट विल गेट √3 + √2 सो ये √2 कैंसिल होगा, यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये 2 इन ब्रैकेट 1 + √3 अपॉन ये √3 as it is and in bracket √3 + √2, this is the answer. So here we in this lecture we finish exercise 2.1 and the first example of exercise 2.2. So the remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.